بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جنوبی پنجاب کا ایک مایہ ناز تاریخی درسگاہ کے ساتھ ساتھ ثقافتوں کی امین، ایک ایسی درسگاہ جو نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے تمام طلباء و طالبات کے لیے تاریخ، زراعت اور زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق تعلیمی ادوار مکمل کرواتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں بھرپور طور پر پاکستان کی معیشت، معاشرے کی ترقی، اپنی ذاتی اور خاندانی فلاح و بہبود کے لیے تیار کرتی ہے۔ فیکلٹی آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پاکستان میں زراعت کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے یہاں سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو زراعت اور اس سے متعلقہ تمام امور کے حوالے سے نہ صرف صلاحیتوں کے اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، بلکہ قائدانہ صلاحیتیں اور تدریسی معاونات کے لیے تیار کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں دی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے فیکلٹی آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹ سائنس کے شعبہ زرعی توسیع و تعلیم، ایگریکلچر ایکسٹینشن ایجوکیشن کے زیر اہتمام فائنل ایئر کے طلباء و طالبات کے تدریسی، ان کی تقریری، تخلیقی اور قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کورس کمیونیکیشن سکلز اینڈ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں کورس کے انسٹرکٹر حامد نواز خان اور ان کے ساتھی معاون عامر ریاض نے بچوں کی تیار کردہ پریزنٹیشنز کا معائنہ کیا۔ بچوں نے اپنی پریزنٹیشنز میں انسان کی تقریری صلاحیتوں کی اہمیت کے حوالے سے بیان کیا، کسی بھی پیغام کو صحیح طریقے سے تیار کرنے کے لیے اور پیغام رسانی کے لیے کن کن ضرورتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی قائدانہ صلاحیتوں کا زراعت کے میدان میں انقلابی طور پر کیا امور لیے جا سکتے ہیں۔ must have the ability کہ so that کہ وہ دوسروں کو بھی اس کے لیے ارج کرے کہ how to achieve our goal and aims in the life۔ next slide۔ یہ ایک آتھر ہے کیٹ ڈیلس، یہ آتھر ہیں ایک مینجمنٹ کے ٹیچر، بہت بڑے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے لیڈرشپ کی ایک ڈیفینیشن دی ہے، اکارڈنگ ٹو ہم دا لیڈرشپ از دا ابیلٹی کو اچیو کس طرح کیا جائے گا، لیڈر کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک انٹرپرسنل پروسیس ہے، انٹرپرسنل اس طرح کہ اس کے لیے زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اگر کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں دیر مسٹ بی این آڈینس۔ نیکسٹ ون از اٹ ڈونیٹس اے فیو کوالٹیز، کہ اس میں کچھ کوالٹیز ڈونیٹ کی جاتی ہیں، کہ جس طرح سے اگر کوئی انٹیلیجنس ہے، فیکٹرز ہیں کہ کس طرح سے کام کو کرنا ہے، کس طرح سے اس کو بہتر بتانا ہے، اس کی ابیلٹیز کو آپ اپنے جس طرح سیکھ رہے ہیں تو وہ دوسروں تک بھی آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بھی لوگ اس چیز کو پک کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے ہے، ہمیں کیوں لیڈرشپ کے اوپر اتنا غور کرنا چاہیے، تو اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے ہے انیشیٹ ایکشنز۔ اب انیشیٹ ایکشنز کی بات اگر ہم کریں کہ لیڈر کو ہی پتہ ہے نا کہ ہم نے کام کو کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، تو اسی لیڈر must know that how to balance the situation، اور وہ باقیوں کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اچھے سے گائیڈ کرے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے کمیونیکیشن سکلز۔ اب کمیونیکیشن، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کمیونیکیشن کیا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی انفارمیشن کو کیسے دوسرے تک پہنچانا ہے، اور انڈرسٹینڈ، وہ بندہ انڈرسٹینڈ بھی کرے اس کے جو ہم اپنی انفارمیشن کو پہنچا رہے ہیں۔ ہماری کمیونیکیشن تبھی سکسیسفل ہوگی جب اگلا بندہ اس کو سمجھے گا، سنے گا۔ نیکسٹ میں گریٹ لیڈر کی اب کوالٹیز ہیں کہ گریٹ لیڈر ڈو ناٹ ہیو، وہ اچھا اسپیچ یا اچھا رائٹر نہیں ہوتا۔ گریٹ لیڈر وہ کیا کرتا ہے کہ گڈ لیڈر، اور وہ آلویز ٹروتھفل ہوگا، وہ کوئی بھی اس پہ حالات ہوں وہ کوئی بات چھپانی نہیں ہے، کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اگر مشکل حالات میں ہیں تو اپنی ٹیم کو کسی کے اوپر کام کیا، کوئی کام اسائن کیا لیکن وہ نہیں کر سکا، فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس کو اپنے جو ٹیم کا ممبر ہوگا اسے سمجھائے گا کہ ہم نے کیسے اس کو حل کرنا ہے، اس کے اوپر پریشرائز اس کو نہیں کرتا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کرسٹلائزڈ کوگنیٹو ایبلٹی۔ یہ جو کرسٹلائزڈ کوگنیٹو ایبلٹی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، جو ہم لوگوں سے ملتے ہیں، جیسے ابھی سجاد صاحب آئے، ان سے ہم ملے، ہم نے ان سے سیکھا۔ یہ ایبلٹی ہم اس طرح ڈیولپ کرتے ہیں جب ہم ڈفرینٹ سیمینارز میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، فارمر سے ملتے ہیں، تو یہ ایبلٹی ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے ایکسپیرینس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، انسان کو ڈائیورسیفائی ہونا چاہیے،
व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, ये है जो आज हम कर रहे हैं, ये है डाइवर्सिफिकेशन, ये है आइडिया। थैंक्स टू सर हामिद नवाज खान। लीडर एक ऐसा इंसान जो कॉम्पिटेंट होता है, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी होती है और वो बिल्ट इन भी होती है, ठीक है, किसी कोई पैदाइशी लीडर होता है। बैरियर कितने हैं हम देखें, यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सर सुबह आया 8 बजे 10 बजे कोई नहीं आया था, सर ने क्या किया, सर ने काम करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्टर लगाया, ये वो हर चीज क्या था, बैरियर थे। लेकिन एक लीडर की क्वालिटी होती है कि उन बैरियर को रिमूव करना। किन के लिए? जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, और सबऑर्डिनेट का फर्ज बनता है कि यार वो अपने लीडर के साथ मिलके, अपने लीडर को अपने उनको साथ लेके, उनको कुछ नहीं यार, आप थोड़ा थोड़ा ऐड करो, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ ज्यादा नहीं। लीडर एक ऐसा शख्स होता है जो आपको लेके चल रहा होता है। आपको अगर हम ये चीजें बताएंगे, आपको पता है उसने बड़ी जबरदस्त की है, वो प्रेजेंटर कम मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा था कि मैं अपने से जूनियर लोगों के साथ खड़ा हूं और मैं काम करते हूं कि तौहीन हो कि नो, आप पहला कदम उठाएं, सारे आपके साथ चलते हैं। और उसके बाद नॉलेज है। नॉलेज में यही कुछ है कि हम लोगों को जिस चीज़ के बारे में पता होगा, जिस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिखा होगा, जितना हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होगा, उसी तरह ही हम लोग मतलब आगे जा सकते हैं, लीड कर सकते हैं। आप लोगों ने इतना सब कुछ सुन लिया, देख लिया सबसे कि लीडरशिप क्या होती है और लीडर किसे कहते हैं। ये लीडर्स में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी ग्रुप को लेकर चल सके और अपना काम आगे कर सके। आज आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि लीडर्स के ट्रेड्स क्या क्या होने चाहिए। लीडर के ट्रेड को समझने के लिए एक आदमी थे जिसका नाम है फेडलर। उसने एक स्केल डेवलप किया जिसको कहा जाता है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। इसमें उसने बताया, ये देखा कि लीडर्स जो हैं वो किस हिसाब से अपने वर्कर्स को सिलेक्ट करते हैं अपने लिए कि उन्हें कौन सा काम किससे करवाना है और कौन सा नहीं। टास्क ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप अपने मेंबर्स के सिर्फ काबिलियत को और काम को देखते हुए ये फैसला करें कि आपने अपने ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स रखने हैं और अपने काम को करने के लिए आपको किस तरह के लोग चाहिए। जो रिलेशनशिप मोटिवेटेड है वो सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ रिलेशन को देखेंगे कि उनका रिलेशनशिप किस मेंबर के साथ अच्छा है और किसके साथ बुरा। फॉलोअर कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वहाँ फॉलोअर्स की भी होती हैं। एक लीडर, अच्छा लीडर, वो नो डाउट अपनी तरफ से 100% देता है, ठीक है, बट जो फॉलोअर अगर उसको पिक करने वाला ना हो तो लीडर जो मर्जी कर ले, फॉलोअर काम नहीं करेगा। जैसे अक्सर स्टूडेंट हम भी देख लें, प्रोफेसर काम कहते रहते हैं, हम करते नहीं हैं। प्रोफेसर कहते हैं भी अपना तुम लोग ट्रायल लगा लो, लैब में चले जाओ, काम कर लो। सर हामिद नवाज ने कहा भी टाइम से आ जाओ, ठीक है, हम नहीं आए, ठीक है, टाइम से आए होते, टाइम से सारा काम होता तो टाइम से वाइंड अप होता, ठीक है। तो फॉलो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि उसको जो गाइडलाइन दी गई है, उसको जो एक चीज बताई गई है वो उस पर पूरा उतरे। लाइक सर ने हमें बताया कि 10 बजे आना है तो हमें 10 बजे आना चाहिए। ये नहीं कि हम 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, जो टाइम बताया गया उस टाइम पे आना चाहिए बस। आज जैसा कि हम तमाम लोग यहाँ दी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से आए हैं और हमारे साथ इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जो आज यहाँ आने का मकसद था वो बुनियादी तौर पर एक आप तमाम लोगों को, जो मेरा एक अपना ख्याल था, बल्कि मैं कहता हूँ वो मेरा यकीन था और यकीन है कि जिस तरह की ये एक्टिविटी मैंने आज यहाँ आप लोगों के लिए विद द कोऑपरेशन ऑफ डॉक्टर आमिर रियाज, किसी जगह कोई आपको हार्डशिप, कोई ऐसी मुश्किल चीज नजर आती है और आप यहाँ इरादा कर लेते हैं कि मैंने ये करके दिखाना है, तो फिर आप कर गुजरते हैं। वकास मेरे साथ वहां बैठा था, कहता कि सर यूं है, मैंने ये किया है, लेकिन हमें आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जाएं कहाँ। तो एक्चुअली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें जैसे सुबह से बात हो रही थी, बिलाल भट्टी साहब ने कहा, मार सजाद साहब ने कहा, आमिर साहब ने कहा, या आप सारे भी इस चीज को यकीन करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से हैं। स्टीरियोटाइप बिहेवियर,
तो बेसिकली स्टीरियोटाइप बिहेवियर इज ओवर जनरलाइज्ड माइंड पिक्चर दैट यू यूनिवर्सली अप्लाई टू ऑल। इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप उस पर ध्यान दें, उसको लगन से करें तो अल्टीमेटली आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो और अभी जो बात हो रही है वो है लीडरशिप के हवाले से, और जिसे रहनुमा कहते हैं, इंग्लिश में लीडर कहते हैं। रहनुमाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस राह की रहनुमाई की जा रही है उस राह से आप खुद भी वाकिफ़ है। हर शोबे में रहनुमा होते हैं, लीडर होते हैं, लीड करते हैं, बड़े लोग होते हैं वो, और वो उस वक्त हो सकता है जब इंसान के पास वसी तजुर्बात हो, वसी इल्म हो, और तजुर्बात के लिए वक्त चाहिए, तवज्जो चाहिए और मेहनत चाहिए। और जिस शोबे में आप जा रहे हैं, तमाम शोबों में लोग माहिर होते हैं, लेकिन जिस शोबे में आप हैं, ज़राअत या लाइफ स्टॉक, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिकली अपने तौर पे आप ये काम नहीं करते, लेकिन आपने पढ़ा ज़रूर होगा, और इल्म की कोई हद नहीं होती। पहले जो काश्तकारी होती रही हमारे यहाँ, रिवायती काश्तकारी थी, कुएँ होते थे, बैल से पानी निकाला जाता था, बैल से हल चलाए जाते थे, और अब मशीनी काश्त है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने काश्तकारों को लीड करना है, रहनुमाई देनी है, तो वो उस वक्त मुमकिन होगी जब आप खुद जानते होंगे। और ख़ास तौर पे एक रिवायती काम करने वालों को जिद्दत की तरफ लाना, उनको ज़हनी तौर पे तैयार करना आप लोगों के लिए बड़ा मसला होगा। जब आप किसी को कोई रहनुमाई कर रहे होते हैं तो दलाइल के साथ बात करना ज़रूरी होती है, अपने तजर्बात बताने होते हैं, और जिसके पास तजर्बात नहीं होते वो कुछ बता नहीं सकता। और कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी उस वक्त पैदा होती है जब आपके पास इल्म होता है, तजर्बात होते हैं। और ये शोबा ऐसा है ज़राअत का जो हमारी मईशत रीढ़ की हड्डी है, और आने वाले वक्तों में जैसा कि दुनिया भर के साइंसदान कह रहे हैं कि ग़िज़ा का मसला आने वाला है, मौसम बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, अनाज की आबादी बढ़ रही है, अनाज की कमी हो रही है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि रिसर्च, तहकीक बहुत ज़रूरी है कि हर पहलू से जदीद काश्त के लिए क्या बुनियादी चीज़ें चाहिए, ज़मीन की तैयारी होती है, फिर उसके बाद जदीद किस्म के बीज होते हैं, फिर वक्त काश्त होता है। उसमें ये ज़रूरी है कि अगर आप वक्त पे काश्त नहीं कराते, नहीं होती, तो वो उसका फल फूल नहीं मिलता। और अगर आप सही मायनों में सही तरीके से शोबा ज़राअत को रहनुमाई दे सकते हैं, काश्तकारों को गाइड कर सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी खिदमत होगी जो अपने पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए करेंगे। उसके लिए आपकी मेहनत, लगन ये ज़रूरी है। फिर आपका तरीका, जो आप बात करते हैं किसी से, उस बात करने में आपका अंदाज कैसा है, क्या आपकी बात दिल पर असर करती है, सामने वाला आदमी आपकी बात पर तवज्जो देता है। अगर नहीं दे रहा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी बात में कशिश नहीं है, आपका बात करने का अंदाज अच्छा नहीं है, या फिर बात में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गौर किया जाए उस पर। तो अखलाक बुनियादी चीज़ है, हमारे मज़हब में भी, हमारे समाजी माशरे में भी, समाजी निज़ाम में भी अखलाक बड़ा असर करता है आदमी पे। जब आप कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं, उसका अदब मलूज़ खातिर रखेंगे तो आपकी बात गौर से सुनेगा। आप एक कौम की रहनुमाई कर रहे होंगे, कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे। बाकी शोबों में भी कौमी खिदमत होती हैं, लेकिन ज़राअत के शोबों में या लाइफ स्टाफ के शोबे में इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है हमारी कौम को कि आप लोग इस तरह से काम करें कि आने वाले वक्तों में जो ग़िज़ाई किल्लत का ख़दशा हो रहा है, जो हालात बदल रहे हैं, उसमें आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मैं बहुत ममनून हूँ हामिद नवाज़ खान साहब का कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया, आपसे बात करने का मौका दिया। अब जाते जाते छोटी सी बात ये, आप सोने से पहले रोज़ाना के बुनियाद पे आंखें बंद करके नींद से पहले थोड़ा सा सोचा करें आज मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई। तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर बिलाल भट्टी तशरीफ़ लाए, जिन्होंने नौजवानों को ज़िंदगी के उमूर के लिए और ज़िंदगी में दरपेश मसाइल के लिए अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंसान ज़राअत के लिए अपनी तालीम के साथ साथ अपनी शख्सी औसाफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे नौजवान जो ज़री ग्रेजुएट होने के बाद ज़राअत के मैदान में
जनूबी पंजाब में बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे, तो आज इस तरह की तरबियत से उनको ये फ़ायदा होगा कि किस तरीके से लोगों को उन्होंने जाकर मैसेजेस देने हैं और अपना खुद एतमादी कैसे पैदा करनी है। आखिर में तलबा तालबात और असातिज़ा कराम के में तारीफ़ी जो शील्ड्स हैं उनकी तकसीम की गई और ये एक यादगार जो लम्हा है वो बहावलपुर के एक मकामी होटल में मुनक्किद किया गया। इस दुआ के साथ कि हमारे नौजवान पाकिस्तान की ज़राअत के लिए अपने तालीमी इदारों में हासिल करदा तालीम को भरपूर तरीके से पेश करें और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी ज़राअत के मैदान में तरक्की कर सके। ये